Hi. Hi guys, welcome on Cine Speaks. Thank Hello. Hi, how are you, Simran, Prateek, Ruhi, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है. Good. Excited. Excited. Yes. कितना That चक्र was awesome. कितना चक्रव्यूह रच लिया अब तक आप लोगों ने? हम ग्लोबल चक्रव्यूह में फंसे हैं इस वक्त. चक्रव्यूह तो कोई और रच रहा है, हम तो फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में. आप लोग मीडिया इंटरेक्शन के चक्रव्यूह में हैं, राइट? Yes. कैसा लग रहा है? नर्वसनेस हो रही है क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, बहुत जबरदस्त है. तो थैंक यू ऋचा जी. जी बिल्कुल नर्वस हैं और उतने ही एक्साइटेड हैं. क्योंकि अब एक्साइटेड है, नर्वस है क्योंकि ट्रेलर इतना बढ़िया लग रहा है और अब शो को जस्टिस देना है बस उस ट्रेलर को. वो हम उम्मीद करते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड. I cannot wait for everybody to watch this show. I'm so excited. रूही, आप क्या बोलना चाहोगी? No, absolutely. I mean, it's been long and that we have all been waiting for this show to come out. We have all given our 100%, lots of hard work, lots of preparation went into the show. And बस इंतजार नहीं हो रहा कि जल्दी से 12th March आए और सब फ्री में MX Player पे ये शो देखें. MX Player पर फ्री. फ्री या. तो हम आप तीनों से जाना चाहेंगे बारी बारी से, क्योंकि प्रतीक का किरदार तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं आप. और रूही, आप बताइए अब अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन क्या लगा था आपको अपने रोल में? The trajectory, I would say, जो मेरा जो किरदार है उसकी एक जर्नी है और जिस तरीके से जो I play सागरिका, जो कि एक विक्टिम है of everything that can go wrong in terms of cybercrime and social media, and how एक innocent एक लड़की किस तरीके से एक चक्रव्यूह में फंसती जाती है. and I would say सबसे attractive, सबसे अच्छा मुझे इसका स्टोरी लाइन, एक जर्नी लगी कैरेक्टर की, कि उसके साथ क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और उसके क्या क्या मतलब I play a victim and you know what a girl goes through, the intense emotions that she goes through while all of this is happening to her. You know, you feel कि you're not, like हमें कई बार लगता है कि we are in control of our lives, but the truth is we are not, and anything can happen to us, and if you're not prepared, if you're not strong enough to deal with those things, किस तरीके से आप you know आप बिल्कुल ही बर्बाद हो सकते हो, या किस तरीके से बहुत dangerous game हो सकता है for a young person in today's day and age, in today's time of social media. So yes, I absolutely loved playing the character क्योंकि मेरे लिए बहुत ही challenging था ये role, and आज तक का I think सबसे tough character है जो मैंने play किया है for me, and बहुत मजा आया. And obviously मेरी ये stellar cast जो हमारे साथ है, प्रतीक, सिमरन, you know, all the like everybody, Shiv Pandit ji, everybody, Ashish Vidyarthi ji. It's got such an amazing cast that I love the show. Yeah, Simran, what about you? Sorry, question. सबसे ज्यादा आंसर में इतना हिप्नोटाइज हो गई, मैं क्वेश्चन ही भूल गई. इस चक्रव्यूह में फंस गई आप मेरे आंसर. एग्जैक्टली. बेस्ट पार्ट इन योर रोल क्या लगा आपको सबसे ज्यादा? So I played Naina. She is a psychiatrist and a student counselor come psychiatrist. So she is basically so she meets Inspector Virkar, who is on a hunt to find this killer, you know, so he's trying to solve this murder mystery, and in that process he meets Naina, जिसकी एक student है who's kind of in, पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है कैसे वो उसमें फंसा है या फंसी है. So that's how Prateek comes into Naina's life, and this hardcore really shrewd पत्थर दिल इंस्पेक्टर नैना को देख के मेल्ट हो जाता है. कैसे then both of them they work as a team and try to solve this chakravyu and find out the killer behind. And I think for me that whole reveal of things, जैसे जैसे वो reveal होती है चीजें, जैसे जैसे जो होता है, and हर character की जो layers है इस show में, I mean everybody's character has layers, and I think that was the most attractive part for me overall.
एंड मेरे किरदार का स्पेशल ऐसा तो कुछ मतलब एवरीथिंग फॉर मी वाज स्पेशल. देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग दैट आई कैन से. एवरी सिंगल थिंग वाज स्पेशल. एंड प्रतीक आप बताइए. Sorry, question क्या था? I think now I actually I got hypnotized by Simran. Same question कि आपको आपके रोल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा जिसके लिए आपने यस किया इस रोल को? मैंने यस किया क्योंकि ये कॉप का किरदार था मेरे विश लिस्ट पे. एक एज एन एक्टर, एक अभिनेता होते हुए मेरी एक विश लिस्ट थी जिसपे कॉप का किरदार निभाना टॉप पे था. पेंडिंग नहीं, टॉप पे था. जी और टॉप जी एब्सोल्युटली टॉप प्रायोरिटी था. तो मुझे ऐसे कुछ 2-3 और बताऊंगा मैं. मुझे सोल्जर का किरदार निभाना है बहुत. मेरी इच्छा है कि मैं करूं कुछ बढ़िया, देश को मैं बचाऊं सिंगल हैंडेडली, वन मैन आर्मी. लेकिन नो बट जोक्स अपार्ट, ये कॉप का रोल मेरे लिए इमीडिएटली मुझे ड्रॉ कर दिया इस स्क्रिप्ट और कहानी और ये प्रोजेक्ट की और स्क्रिप्ट, सारे कैरेक्टर्स, कहानी, जो किताब है, ये एक्चुअली ये किताब है पीयूष झा जी ने लिखी हुई 3 किताबें हैं, ट्रिलॉजी है. तो ये पहली किताब है जिसका पहला सीजन बना है. उस किताब को जब ट्रांसलेट किया स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले में, डायलॉग में, जो कैरेक्टर्स को लाइफ जब दी राइटर्स ने और डायरेक्टर ने, वो कुछ ज्यादा ही खिल गई, इफ आई मे से. कैरेक्टर्स खिल गए, कहानी खिल गई, वो सारा माहौल खिल गया और इतने खूबसूरती लिखा है इतनी खूबसूरती से लिखा है राइटर्स ने कि वो बस हम फिदा हो गए. हम सारे फिदा हो गए, सारे फिदा. एक्चुअली आई थिंक सिमरन भी कहेंगे, रूही भी कहेंगे कि इतना इंट्रीगिंग है जब हम पढ़ते हैं और जब ये कैरेक्टर्स को जीवन जब जीवित होते हैं ये कैरेक्टर्स, तो वो कुछ अलग ही ऑरा दिखता है, कुछ अलग, मतलब इमेजिनेशन वाइल्ड तुम्हारी हो जाती है. और तो हम बहुत लकी थे, हमें ऐसी बेहतरीन स्क्रिप्ट मिली, स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स. बिल्कुल. और तो ये है हमारी, ये कारण है, 2-3 कारण है. एक तो कॉप, एक तो स्क्रिप्ट, एक तो ऑब्वियसली बस इतने से कारण है, इससे ज्यादा नहीं. और स्टारकास्ट ऑब्वियसली बहुत ही यंग और सेक्सी स्टारकास्ट है. हम सब सब we are looking our handsome / gorgeous best, so it's I mean I cannot wait for people to watch it. I can't wait to watch it myself, and I hope the show does justice to the trailer, which I'm pretty sure it's going to. मुझे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना अच्छा ट्रेलर है उतना ही अच्छा शो होगा. Especially the genre that is crime thriller और साइबर क्राइम, डार्क वेब, ये सब आजकल बहुत कॉमन है डे टू डे लाइफ में. बिल्कुल. और ये इसी की वजह से हम बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. वो ही सिमरन, मैं, शिव पंडित, आशीष विद्यार्थी, सब फंसे हुए हैं और सबको बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है
और सबको सब कैसे निकले इस चक्रव्यूह से, कैसे भाग पड़े। ये रियल लाइफ में कभी फेस किया हैकिंग या कुछ ऐसे आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मेरे कुछ याद नहीं किस पे हो, लेकिन 5-6 साल पहले हुआ है कुछ तो फेसबुक या कुछ पता नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन हुआ है जहाँ पे अचानक सब बदल गया मेरा। अच्छा, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? तो बदल गए मेरे डेट वेट ये वो वगैरह सब बदले। अच्छा। तो ये सब हुआ तो हुआ है जी बिल्कुल, और ये होता है और बहुत सालों से हो रहा है, और अभी तो ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। और अब तो मतलब बहुत एडवांस लेवल पे हो रहा है, यू नो। और बिल्कुल हम जानते हैं, बेशक जानते हैं, सब जानते हैं साइबर क्राइम के बारे में, सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यू नो, डार्क वेब और बिटकॉइन के कैसे बोलूं, बिटकॉइन के झोल जो होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब सबको पता है। लेकिन ये अब कुछ ज्यादा ही एक डीप इंसाइट देते हैं इस शो में हम, क्योंकि बहुत सारा गलत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, यू नो, मासूम औरतें की जिंदगी खराब हो रही हैं, और बिना इल्जाम के, बिना सबूत के लोग फंस रहे हैं, और ये सब हो रहा है, और ये सब इसी की वजह से सोशल मीडिया, इंटरनेट एक्सप्लॉयटेशन, यू नो। तो इसके बारे में काफी इंसाइट हमें मिलेगी इस शो में, अवेयरनेस और बढ़ेगी। जितना भी अवेयरनेस हो उतना बेहतर है इन सब चीजों में, आई थिंक। और आई थिंक काफी कुछ देखने और सीखने मिलेगा इन सब चीजों के बारे में। रूही और सिमरन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हैकिंग को लेकर के? कुछ फेस किया आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया पे? You know, सिमरन बताइए। You know, I think ये तो बहुत ही एक चीज है जो something like trolling, you know, it बहुत simple लगती है, but it actually affects everyone at a very deeper level, and कोई भी किसी के भी प्रोफाइल में आके कुछ भी बोल जाता है बिना सोचे बिना समझे, as if हम तो humans है ही नहीं, हमारे तो emotions ही नहीं है, हमारे तो families ही नहीं है, you know, so people just come and they say anything, and because of easy access, it is everybody is accessible. तो अगर आपको किसी को भी कल को कुछ भी जाके बोलना है, आप जाके उसके प्रोफाइल के नीचे बोल सकते हो, you know, so there are lots of things that happen, and even other than that, कोई लिंक आ जाती है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, there are so many things that go wrong, you know, with social media. It can be used in a proper way or in a really really bad way. So I think with a show like this, कहीं ना कहीं subconsciously आपको ये चीज रिमाइंड कराती है that, you know, आपको थोड़ा you have to be careful, and थोड़ा आपको सतर्क होके रहना चाहिए, and you should not just, you know, take things for granted, like especially social media. इतनी कुछ भी पोस्ट कर रहे हो वो मिसयूज हो सकता है, ये चीज आपको हमेशा सोचनी चाहिए, and I think it's a great concept, and more shows should be made on this concept. Right. Yeah, Ruhi. You know, like Simran just said कि trolling के कोई भी आता है और कोई कुछ भी मुंह उठा के बोल के चला जाता है, that is so weird, and it's extremely appalling, you know, when I actually see some of these comments from these teenage boys or these random, like super random situations से आप एक बहुत ही एक इस तरीके की बातें कर जाते हैं जो कि borderline criminal बातें हैं, and you know, in real life, मतलब जो वो बोलते हैं कि real life में तो ये ऐसा नहीं है, because I remember I have actually confronted a few people. I contacted. Oh, you have? I did, yeah. I was this one person used to send me emails, you know, like with nudes, and I didn't want them, and he seemed pretty sick to me, and it became a very harrowing situation for me, because every time I open my mail, I have these photographs that I don't want to see. So I mean, now I'm laughing about it, but that time was pretty scary for me. So I have get very scary. Yeah, and I have contacted the cybercrime department a few times actually, and कई बार उन्होंने पता भी किया है, और इनफैक्ट उन बच्चों को, मतलब काफी यंग बॉयज, एंड उनको मेल किया गया है, तब वो अचानक से, you know, and what's funny,
is किस तरीके से वो गालियां, like you are this and you are that, and you know those गालियां turn into sorry दीदी. Oh yes. In a few minutes, sorry didi, I didn't know it was a crime. So, are you serious? Yeah, sorry. They are there for attention. They are there for, but I think it's such a dangerous situation. You know, it's such a dangerous situation. I feel, मतलब I strongly believe that because आज का जो youth है, वो इतना exposed है to social media and they're doing everything on social media. It is a very important integral part of their life. We should totally have a subject on it in schools, you know, called social media ethics. Right. I second that. Ruhi, it is a great idea. I think we should have a subject on this. Yeah. Absolutely. Actually, yeah. थोड़ा फनी बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का गाइस. सेट पे कितनी मस्ती करी है आप लोगों ने, और सबसे ज्यादा कौन किसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग रही है, और कौन प्रैंक स्टार रहा है सेट पर? मुझे शिव पंडित और प्रतीक बब्बर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है. अच्छा. हाँ, हमारी तो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी. काफी सालों से हम जिम विम करते हैं साथ में, कभी कभी मस्ती होती रहती है. लेकिन मुझे जितना तक याद है, हाँ, सिमरन और शिवी और सिमी के साथ, सॉरी मैं शॉर्ट फॉर्म्स बनाता हूँ. चलेगा. But Ruhi can't, we can't call Ruhi a short form, can't make Ruhi into a short form. Yeah. Ru. Prat याद है. Ru. हाँ, नहीं तो मैं और रूही के सीन्स तो थे नहीं, लेकिन सिमरन, शिव और मेरे सीन्स काफी थे. और जब हमारे सीन्स थे, हम मस्ती चालू रहती थी हम लोग की. एक सीन था जहाँ पे एक मैं नरेट करना चाहूंगा, जहाँ पे हमारा एक्शन सीक्वेंस था, तीनों थे. लेकिन सिमरन मैडम मस्त सो रही है उस सीक्वेंस में, मस्त सो रहे हैं, और हम दोनों तो पागल काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह. हाँ, नहीं तो वो उस रिहर्सल के लिए हम मतलब पसीना छूट रहा है और ये टूट रहा है, वो और हम लोग, और मैडम जी मस्त मतलब कोने से देखते रह रही है और बोल रहे हैं, हाँ तुम तो लग रहा हो, तो मैं बहुत मजा आया था उनको. नहीं, but I mean, नहीं, you know, some light moments बहुत necessary है यार. काम के साथ मजा बहुत जरूरी है, नहीं तो वो थोड़ा इन्होंने एक्चुअली मेरी वीडियोस बनाई हुई है, और मैं वैसे नॉर्मली सोती नहीं हूँ, बट वो एक बार था कि मेरा मुंह थोड़ा खुला हुआ था, तो वो उन्होंने वीडियो बनाई है. That's the worst. I hate that, you know. And then I was sleeping and these guys, it's so, ये नहीं कि उठा दो, मैं वीडियो बना रहे बैठ के. In that way, Ruhi is lucky कि वो बच गई इस तरह की. वो बच गई. मेरे mostly scenes, now that I think about it, इस शो में I think इस शो में सबसे कम मस्ती मैंने की होगी, because मेरे mostly scenes अकेले थे, and you know, और बहुत serious थे. So I wanted to be in character, and I'm like, यहाँ तो मतलब मुझे करके ही दिखाना है. Don't ask me anyone. So हाँ, तो मैं throughout काफी serious रही हूँ, and I think अब जब release हो जाएगा, तब finally celebration, you know, is in order. Absolutely. Yes, definitely. Absolutely. तो प्रतीक, आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, पर्सनली बोलना चाहती थी बहुत टाइम से, कि आप जो भी कैरेक्टर करते हैं इतना डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये आप हैं, और आप इतने सीधे साधे और भोले भाले कैरेक्टर के रियल में हैं. चाहे वो आप ड्रग एडिक्ट करें, चाहे आप कोई भी नेगेटिव रोल करें, प्रतीक, यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग. Thank you. That is very kind of you. Very. कुछ खास वजह बताइए कि आप कैरेक्टर में इतना डीपली कैसे जाते हैं? खास वही एक्टर का एक अभिनेता, एक अभिनेत्री का वही काम होता है. जितना भी लाइफ लाइक आप कैरेक्टर्स को आप निभाओ, ट्रे करो, वही एक एक्टर की वही एक एक्टर का खेल होता है. और आई थिंक मुझे मजा भी बहुत आता है जब मैं पूरी तरह घुस जाऊं कैरेक्टर में और किरदारों में. उससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं होती है जब मुझे लगता है, या मेरे डायरेक्टर मुझे रीअश्योर करते हैं, या यार
क्या शॉट दिया यार, क्या किया यार, वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होती है। और you know, he was so much in character. Sorry, I'm cutting you, Pratik, but मुझे just याद आया अभी कि he was so much in character कि जब डायरेक्टर कट भी बोलता था ना, हमारी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी हो रही होती है, लाइक जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शॉट के बीच में, he still talking to me like इंस्पेक्टर वीरकर। मुझे तो लगता था कि प्रतीक ऐसा ही है, लाइक यू नो ये ऐसा ही है। तो फॉर मी प्रतीक इज इंस्पेक्टर वीरकर। मैंने प्रतीक का नॉर्मल साइड तो देखा ही नहीं है, तो मैं सोचती प्रतीक अभी भी एक्टिंग कर रहा है कि वही मतलब ऐसा ही है। नहीं तो 8 एपिसोड है ये पहला सीजन। सॉरी मेरा डॉगी हाय बोलने आया। हाय, क्या नाम है इसका? इसका नाम चीको है। गो बॉय। नो चीको, ओह स्वीट। चीको। तो 8 एपिसोड्स हैं। कितने आवर्स के हैं पर एपिसोड? I think 25. Yeah, they're quick. They're very quick. Yeah, right. I think B's 20-25. They're very quick. They're 8 episodes. It's a completely binge-worthy show. Like आप एक बार start करोगे, pause या stop नहीं कर पाओगे। तो आप please time लेके देखना। ऐसा मत सोचना मैं 1-2 एपिसोड देख के बंद करूंगी, क्योंकि वो होने नहीं वाला है। वो होने ही नहीं वाला है। होने नहीं वाला है। टाइम लेके देखना कि अभी मैं 3 घंटे देने वाली हूँ इस शो को। It will leave you wanting, desperately wanting for more. ट्रेलर देख के लग रहा है ऐसा आपको। तो चलते चलते बस फैंस के लिए एक अच्छा सा शाउट आउट हो जाए, कुछ मैसेज दे दीजिए। कुछ 12 मार्च को आ रही है और क्या है, क्यों देखें वो बता दीजिए। भाइयों बहनों दोस्तों, 12 मार्च को आ रहा है चक्रव्यूह द इंस्पेक्टर वीरकर क्राइम थ्रिलर। ये बहुत ही धमाकेदार इंटेंस शो है, इंटेंस कैरेक्टर्स हैं, इंटेंस सिचुएशंस हैं। ये डार्क वेब के बारे में है, साइबर क्राइम के बारे में है, सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है, लेकिन सब बहुत ही रियल है और रिलेटेबल है और हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे, और ताकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत दिखे और शो आपको पसंद आए, कहानी पसंद आए, किरदारें पसंद आए। और बिंज वॉच कीजिए MX प्लेयर पर फ्री 12 मार्च को। फ्री, दैट्स द कोड वर्ड। मतलब फ्री में देखिए, इससे बेटर आपको डील कहीं नहीं मिल सकती। कहीं नहीं मिल सकता, फ्री में देखिए। जरूर देखेंगे गाइस, एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।